Dear students, today's topic is Pythagoras theorem. Pythagoras theorem, I think each and every student, he or she, known very well. What is the meaning of Pythagoras theorem? So let's discuss. In this chapter, Pythagoras theorem, we will discuss some important points which are written on the whiteboard. First point is Pythagoras theorem. Second point is Pythagorean triplet, 30, 60, 90 triangle theorem and 45, 45, 90 triangle theorem. आप सभी लोगों ने पाइथागोरस का नाम सुना है और मुझे लगता है हर बच्चे को पता है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है. तो लेट्स डिस्कस. In a right angle triangle, this is a right angle triangle A, B, C, in which angle B is 90 degree. Okay. So in a right angle triangle, which is a hypotenuse side, the side opposite to 90 degree. The side opposite to 90 degree is called hypotenuse side. In a right angle triangle, hypotenuse side is the largest side. This side is the largest side. And these two sides contain a right angle, that is angle B. So what is Pythagoras theorem? The square of hypotenuse is equal to the square of sum of the squares of remaining two sides. क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूस साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स. तो हाउ टू राइट पाइथागोरस थ्योरम? द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस, दिस इज द हाइपोटेन्यूस, दैट मींस AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू sum of the remaining two sides, that is AB square plus AC square. So by using Pythagoras theorem, you can easily calculate the value, the measure of remaining one side. Two sides must be given. आपको यहाँ पे दो साइड का वैल्यू दिया रहेगा और आपको थर्ड साइड का वैल्यू निकालना है. सपोज एग्जांपल, this side is 3, this side is 4. Find the value of hypotenuse. So this is a Pythagoras theorem. Pythagoras theorem. So what will happen? 3 square plus 4 square, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों का प्लस हो जाएगा 25. This is AC square. Therefore by taking square root, तो square cancel, answer is 5. This is how you will calculate the value of hypotenuse. If suppose hypotenuse is given 5 and you have to find the value of AB, BC is 4, two sides आपको दी रहेगी और एक साइड का वैल्यू आपको फाइंड करना है, तो आप किसका यूज करोगे? पाइथागोरस थ्योरम. बट द कंडीशन इज दैट triangle must be a right angle triangle. This is not applicable to any other triangle. The most important thing, it must contain a 90 degree angle or a right angle triangle. Okay, so this is a statement of Pythagoras theorem. Okay, now we will discuss Pythagorean triplet. Pythagorean triplets. What is the meaning of Pythagorean triplet?
in a triplet of natural number. In a triplet of natural number means आपके पास तीन नंबर्स हैं, तीन नेचुरल नंबर्स. You know, natural number starts from 1, 2, 3 and so on. These are the three natural numbers. आपके पास कोई भी तीन नेचुरल नंबर है. So आपको पता करना है what is Pythagorean triplet. The square of larger number, the square of larger number is equal to sum of the squares of remaining two numbers is equal. फिर से सुनो बेटा, the square of larger number is equal to sum of the squares of remaining two numbers. अगर ऐसा होता है then these numbers are called Pythagorean triplet. In a square, in a set of natural number, how many numbers? Three numbers. तो square of larger number equal है किसके? Sum of the squares of remaining two sides. Then these numbers are called Pythagorean triplet. So let's see the example. Suppose you have 3, 4, 5. These are three natural numbers. ये तीन natural numbers हैं. अब आपको पता करना है क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं है. क्या 3, 4, 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं है? Are these three numbers are Pythagorean triplet or not? तो क्या करना पड़ेगा इसमें आपको? सबसे पहले लार्जर नंबर का स्क्वायर. तो विच इज द लार्जर नंबर? 5. तो सबसे पहले आप लोगे 5 का स्क्वायर. 5 का स्क्वायर 25. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि वहां पर जो लार्जर नंबर रहेगा उसको स्क्वायर करना पड़ेगा. अब जो बचे हुए नंबर्स हैं उनके स्क्वायर का प्लस चेक करते हैं. तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 3? 9 प्लस व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 16? 25 एंड द आंसर इज 25. दिस इज सेकंड इक्वेशन. Therefore from first and second we get what we get? Right hand side is equal 25 25. Therefore left hand side is also equal. So 5 square is equal to 3 square plus 4 square. That means the square of larger number is equal to a sum of the squares of remaining two numbers. So अगर ऐसा होता है तो therefore 3, 4, 5 are Pythagorean triplet. These are Pythagorean triplet 3, 4, 5. Understand? So this is how you can check whether the numbers are Pythagorean triplet or not. Suppose there is another example. 6, 7, 8. Are these a Pythagorean triplet? क्या ये Pythagorean triplet है? चेक करना है आपको. तो how will you check it out? The square of larger number. तो 8 square is how much beta? 64. Give it equation number 1. Then check it out. 6 square plus 7 square. The square of remaining two sides. So sum of the squares of remaining two sides. 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, दोनों का प्लस 9 plus 6 15, carry 1, 5 and 3 8, 85. Give it equation number 2. Now compare equation 1 and 2. In right hand side first equation 64, second equation 85. That means right hand side is not equal. Therefore from first and second we get what? We get 8 square
इज नॉट इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। तो यहां पर क्या हो रहा है कि स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर इज नॉट इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड नंबर्स। Therefore 6, 7, 8 are not Pythagorean triplet. These are not Pythagorean triplet. Understand the concept of Pythagorean triplet and which are not Pythagorean triplet. So repeat once again. आपको 3 नंबर्स दिए रहेंगे, 3 नंबर में सबसे बड़ा जो नंबर रहेगा लार्जर नंबर उसका स्क्वायर करना, फिर बाकी जो बचे हुए नंबर्स हैं उनके स्क्वायर को प्लस करना, और प्लस करने के बाद अगर वो उसके इक्वल आता है फर्स्ट और सेकंड में राइट हैंड साइड तो वो हो जाता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। सो व्हाट इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट? द स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर इज इक्वल्स टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू नंबर्स। इन दिस केस the square of larger number is not equal to sum of the squares of remaining two numbers. So therefore these are not Pythagorean triplet. Okay? Now चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्रायंगल थ्योरम। सो व्हाट इज 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्रायंगल थ्योरम? इसका मतलब क्या होता है बेटा, और इसका यूज कैसे करना है आपको प्रॉब्लम में, आपको कैसे मालूम चलेगा 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्रायंगल थ्योरम का यूज करना है? सो लेट्स लर्न। सपोज यू हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल, आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC जिसमें एंगल B कितने का है? 90 डिग्री। Now the remaining two angles A and C, these are acute angles. अब जो बचे हुए एंगल हैं वो 90 डिग्री से छोटे रहेंगे। तो बेटा मैं उसमें से एक एंगल ले लेता हूं 60 डिग्री और एक एंगल ले लेता हूं मैं 30 डिग्री। These are the special angles, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो अगर क्वेश्चन में ऐसे आता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है और उसमें से एक एंगल 30 डिग्री का है, एक 60 डिग्री और एक 90 डिग्री है, तो इसका क्या रूल है, इसका क्या थ्योरम है? इसको मैं भी आपको पूरा प्रूफ नहीं कराऊंगा, ओनली स्टेटमेंट बताऊंगा इसका, और इसको यूज कैसे करना है। देखो, इन ट्रायंगल ABC एंगल B is 90 degree, angle C is 60 degree and angle A is 30 degree। अच्छा, इसको आप क्या कर सकते हैं, यहां 60 लिखा मैंने, यहां 30, तो आप इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, यहां 30 आ सकता है, यहां 60 आ सकता है। ओके, बट 90 की पोजीशन बेटा वही रहेगी। ओके, सो व्हाट इज 30, 60, 90 ट्रायंगल थ्योरम? फर्स्ट पॉइंट, साइड opposite to 30 डिग्री, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, 30 डिग्री के अपोजिट साइड यानी सामने साइड कौन है? BC। तो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री कैसी होती है? इज इक्वल टू हाउ मच? हाफ इनटू हाइपोटेनियस साइड। So what is the rule of 30 degree? Side opposite to 30 degree is equal to half of hypotenuse side. इसका मतलब बेटा side opposite to 30 degree, which is the opposite side BC, is equal to half of which is hypotenuse side opposite to 90 degree AC। तो BC जो है वो 30 डिग्री के सामने है, तो 30 डिग्री के सामने वाली अपोजिट साइड उसका वैल्यू होगा हाफ ऑफ हाइपोटेनियस। कौन है हाइपोटेनियस? AC। अंडरस्टैंड? सो नेक्स्ट रूल फॉर 60 डिग्री, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, 60 डिग्री के अपोजिट साइड इसका वैल्यू क्या होता है?
तो 60 डिग्री के अपोजिट साइड कौन है? ए बी। तो इसका रूल है बेटा, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज √3/2 इनटू हाइपोटेनियस। तो 60 डिग्री के अपोजिट साइड जो होगी उसका वैल्यू क्या होगा? √3/2 इनटू हाइपोटेनियस। तो यह है 60 डिग्री। 60 डिग्री के अपोजिट साइड कौन है? ए बी। तो ए बी इज इक्वल टू √3/2 इनटू हाइपोटेनियस। विच वन इज हाइपोटेनियस? AC, साइड अपोजिट टू 90 डिग्री। तो ये आ गया 60 डिग्री का रूल। सो दिस इज व्हाट 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 ट्रायंगल थ्योरम। तो आपके दिमाग में आएगा ये थ्योरम का यूज कहां करना है? ओके, तो यहां पर है बेटा ट्रायंगल एबीसी। सपोज BC is 2, वैल्यू ऑफ BC is 2, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB एंड AC? अब आपको निकालना है AB और AC का वैल्यू क्या होगा। तो क्या आप यहां पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। यू कैनॉट यूज पाइथागोरस थ्योरम बिकॉज फॉर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यू मस्ट नो द वैल्यू ऑफ टू साइड्स। अगर आपको पाइथागोरस लगाना है तो उसके लिए दो साइड वैल्यू मालूम होना ही चाहिए, और अगर ऐसा नहीं है तो आप पाइथागोरस नहीं लगा सकते। अब देखो यहां पर आपको एक ही साइड का वैल्यू मालूम है 2 और बाकी दोनों साइड का वैल्यू निकालना है, तो इसमें पाइथागोरस फ्लॉप। फिर आप किसकी मदद लोगे? 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। बट द कंडीशन इज one angle must be 30, another is 60 and the third one is 90। ऐसा होना ही चाहिए, तभी आप इस रूल को लगा सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सपोज BC का वैल्यू दिया है बेटा 2, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ AB एंड AC। तो सबसे पहले आपको 30 डिग्री के सामने वाली साइड मालूम है 2, तो आप 30 डिग्री का यूज करोगे। साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज व्हाट? BC। BC इज हाउ मच? हाफ ऑफ हाइपोटेनियस। 30 डिग्री के सामने वाली साइड हाफ होती है किसके? हाइपोटेनियस के। तो ये हो जाएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BC? 2 हाफ इनटू AC। तो ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 into 2 इक्वल टू AC। देयरफॉर AC इक्वल टू 2 to the 4। तो AC का वैल्यू क्या आ जाएगा? 4। अंडरस्टैंड? नाउ द नेक्स्ट वन इज BAB। अब आप यहां पाइथागोरस भी लगा सकते हैं या 60 डिग्री का यूज भी कर सकते हैं। तो चलो 60 डिग्री का यूज करते हैं। 60 डिग्री के अपोजिट साइड कौन है बेटा? AB। तो AB इज इक्वल टू 60 डिग्री के अपोजिट साइड AB √3/2 इनटू हाइपोटेनियस, व्हिच इज हाइपोटेनियस AC। तो √3/2 इनटू AC का वैल्यू क्या है? 4। कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 2 2 2 4, आंसर आएगा 2√3। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB? 2√3। दिस इज हाउ यू कैन यूज 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्रायंगल थ्योरम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। तो जब भी क्वेश्चन में आपको एक साइड का वैल्यू मालूम रहेगा तो आप 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 का यूज करके दोनों साइड की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री हाफ ऑफ हाइपोटेनियस, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, 60 डिग्री के अपोजिट साइड का वैल्यू क्या होता है? √3/2 इनटू हाइपोटेनियस, और 30 डिग्री के सामने वाली साइड का वैल्यू हाफ ऑफ हाइपोटेनियस। ये आपको याद रखना है। अंडरस्टैंड? ओके। नाउ वी विल लर्न 45 45 90 डिग्री ट्रायंगल थ्योरम। अब इसका यूज कैसे करना है और ये क्या है और आपको कैसे पता चलेगा 45 45 90 का यूज करना है, तो लेट्स चेक इट आउट। सपोज आपके पास फिर से बेटा राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, एंगल B इज 90 डिग्री। अब जो बचे हुए रिमेनिंग एंगल्स हैं वो एक्यूट एंगल्स हैं। अब मैं इसको ले रहा हूं 45 डिग्री और इसको भी ले रहा हूं 45 डिग्री। ले सकते हैं आप, दोनों एक्यूट एंगल है, लेस देन 90 डिग्री। सो अब ये कौन से टाइप का ट्रायंगल बन गया आपको पता है? तो ये बन चुका है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल बन चुका है ये? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। व्हाई?
because the two angles are equal, और आपने इसका थ्योरम पढ़ चुका है आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम. तो two angles are equal, therefore opposite sides are also equal. तो AB and BC, these two sides are also equal because it is a isosceles right angle triangle. So what is 45 45 90 degree triangle theorem और इसका यूज कैसे करेंगे आप? तो जब भी क्वेश्चन में आपको एक ट्रायंगल रहेगा, इसके दो एंगल्स 45 के रहेंगे और आपको बेटा वहां पर ओनली वन साइड पता है, तो फिर आप इस थ्योरम का यूज कर सकते हैं. तो इन ट्रायंगल ABC, एंगल A is equal to angle C, both are 45 degree, and angle B is 90 degree. तो what is the rule of 45 degree? तो देखो बेटा, साइड अपोजिट टू 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2 इंटू हाइपोटेनियस साइड. कौन सी साइड हो जाती है? हाइपोटेनियस साइड. तो व्हाट इज द साइड अपोजिट टू 45 डिग्री? तो 45 डिग्री के सामने कौन है बेटा? BC. तो एक बच्चा बोलेगा सर AB भी तो है और ये दोनों साइड्स कैसी है? इक्वल. तो 45 डिग्री के सामने और एक है AB, 45 के सामने BC, तो दोनों साइड्स इक्वल है. तो BC इक्वल टू AC, दीज आर द साइड अपोजिट टू 45 डिग्री. तो इसका वैल्यू क्या आएगा? 1/√2 इनटू व्हाट इज द हाइपोटेनियस? AC. सो ये है रूल 45 डिग्री का. अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूं इसमें होता क्या है. सपोज BC is 2, BC का वैल्यू 2. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB? तो लिसन एंड वॉच इट केयरफुली. सपोज BC is 2, तो बेटा AB भी 2 होगा नेचुरली. तो BC is 2, therefore AB is also 2 because this is an isosceles right angle triangle. तो opposite sides are equal, two angles are equal, तो ये 45 का हो जाएगा. Now AC कैसे निकालेंगे? AC तो आप इसमें यूज करेंगे 45 45 90 ट्रायंगल थ्योरम. कैसे यूज करेंगे बेटा? तो साइड अपोजिट टू 45 कौन है? BC. कोई भी एक साइड ले सकते हैं आप. तो BC 45 डिग्री के सामने वाली साइड का नाम पहले लिखो, इक्वल टू 1/√2 इनटू हाइपोटेनियस AC. तो BC कितना दिया बेटा? 2. 1/√2 इनटू AC. ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इनटू √2 इक्वल टू AC. देयरफॉर AC इक्वल टू 2√2. तो AC का वैल्यू आ जाएगा 2√2. ये मल्टीप्लाई नहीं होगा बिकॉज दिस इज इरेशनल नंबर एंड दिस इज अ रैशनल नंबर. तो आंसर आएगा 2√2. दिस इज हाउ you can calculate any side of a triangle by using 45 45 90 degree triangle theorem. Understand? तो आपने आज सीखा 30 60 90 and 45 45. तो फटाक से एक रिकैप कर लेते हैं. 30 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है? हाफ ऑफ हाइपोटेनियस. 60 डिग्री के अपोजिट साइड क्या होती है? √3/2 हाइपोटेनियस. और 45 डिग्री के अपोजिट साइड क्या होती है? 1/√2. और तीनों में यहां पे कौन सी साइड आएगी बेटा? हाइपोटेनियस साइड. तो 30 डिग्री के सामने वाली साइड हाफ, 60 डिग्री के अपोजिट साइड √3/2 और 45 डिग्री के अपोजिट साइड 1/√2 हाइपोटेनियस. ओके, अंडरस्टैंड? थैंक यू.